Okay, so we are going to start alternating current, AC current. So alternating current means the current which is variable with respect to time. अगर ये fluctuate करता है about its mean position like a wave, the current fluctuates like a wave. That's why it is called alternating current, which is variable, positive negative positive negative positive negative like that. In phase, इसका phase हमेशा change होता जाएगा, मतलब its value is not constant, its value is alternatively changed. Positive phase में the positive loop, negative loop, it is like a wave. So in this chapter, whenever you have to deal with current and voltage, हम उसको as a wave consider करेंगे. Clear? So why this current is variable? First, we are going to discuss that. If a Because this is what the EMF induced. If you are rotating a coil in a magnetic field, rotating coil in magnetic field. If a coil rotates in a uniform magnetic field, suppose there is a magnetic field, a uniform magnetic field is there, that B, and I have placed a coil here in this magnetic field. This coil is of certain number of loops. इसमें कुछ number of loops हैं, इसका area भी constant है. It is making some angle theta, which is nothing but omega t. अब suppose to induce EMF, according to Faraday's law, EMF is what? d phi by dt, rate of change of flux. Whenever there is change in flux, somehow you are changing the flux and EMF is induced. So flux का expression is what? It is d dt of flux is what? Ba cos omega t or Ba cos theta. That is what the magnetic flux, number of magnetic lines of forces passing through unit area. Unit area से कितनी number of magnetic lines जा रही हैं? So that is what magnetic flux is. So whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced and electric voltage is induced, so that is EMF is what? Ba cos theta. So if you have to induce an EMF induced करने के लिए you have to change the flux. Somehow we can change the flux. So flux depends on three factors. It depends on magnetic field, it depends on area, it depends on magnetic field, area and angle, that cos omega t. So in this case, if a coil is rotating in an uniform magnetic field, so what happens? इस coil का जो यहाँ पे जो uniform magnetic field present है, that field is not variable, field is constant. ये तो constant term है हमारा. That magnetic field is uniform. Is throughout the reason magnetic field uniform है. Area, the area of this coil, जब ये rotate करेगा, even if it is rotating, its area is not variable. Its area is also, जो loop का area है pi r square, that area is also constant. तो ये भी term constant है. The variable quantity is what? That angle. When you are rotating this coil, its angle is variable. ये जो angle form करेगा magnetic field के साथ, that angle is variable. या flux के साथ जो angle form हो रहा है, that is variable. So this cos omega t is variable. So when we are going to differentiate this, you don't have to differentiate this BA. BA को बाहर करके what we are going to do? We are just going to differentiate this cos omega t so that we can get the induced EMF. And if you are applying Lenz law, so according to Lenz law, the EMF which is induced because of rotation of this coil or because of change in flux, the EMF which is induced, it is induced in such a way, in such a direction which opposes its own induction. ये खुद के induction को ही oppose करता है. तो if you are applying Lenz law, E is equal to what? Minus d phi by dt. That is what? Negative of rate of change of magnetic flux. So E is equal to minus d phi by dt. I am going to differentiate this cos omega because only this quantity is variable. BA, इसका magnetic field यहाँ पे this coil is placed in a uniform magnetic field. Magnetic field is constant. The area of the loop is also constant. तो area भी नहीं change हो रहा है, तो BO को हम side कर देंगे. We are going to differentiate cos omega t because somehow you have to change the flux ना. ऐसी कोई जरूरी नहीं कि you have to change the field only or you have to change the area. कुछ भी change कर दो. इन तीनों में किसी एक at least एक quantity change होनी चाहिए. तीनों में कोई भी अगर change हो जाता है तो EMF is induced. So here because we are rotating the coil. Why we are rotating the coil? Just suppose if you are rotating a magnet. Because we cannot change the magnetic field. यहाँ पे जो हमने एक magnetic field stabilize किया उसको हम बार-बार नहीं बदल सकते. How that magnetic field is stabilized, हमको यहाँ पे magnetic poles place करेंगे तो उस poles को हम बार-बार नहीं change कर सकते, तो magnetic field uniform रखा हुआ है. Area of this loop, इस area को भी अगर उस wire का एक conducting wire का loop है उसके area को बार-बार change करोगे तो वो टूट जाएगा. तो area को भी हम बार-बार change नहीं कर सकते. What we can change? We can just change the angle. By rotating this coil, we can change the angle. और rotation से ये this coil टूटेगा भी नहीं, मतलब ये disturb भी नहीं होगा.
So if you are rotating a magnet या magnetic coil and EMF is induced, और rotation में क्या होगा कि इसमें इसके structure में कोई disturbance नहीं आएगा. So that's why we are not changing magnetic field and area. What we are doing, we are just rotating this coil to change the angle. So just differentiate this. If you are differentiating minus BA, derivative of cos omega t. So derivative of cos omega t is what? Minus sin omega t into omega. Chain rule में differentiate. Minus d phi by dt. That is what Faraday Lenz law. हाँ Lenz law के according we are putting minus sign here. Yeah, by obeying the Lenz law. So minus d phi by dt minus b magnetic field and area, both the terms are constant. उसको मैंने बाहर कर दिया. If you are differentiating this cos omega t, so cos theta का differentiation क्या होता है? Minus sin theta. But here it is not just theta, it is omega t, and we are differentiating with respect to time. तो chain rule में अगर जाएंगे तो again you have to differentiate this omega t, so we are going to get omega. So this is what the expression of this minus and minus sign are cancelled. So BA sin BA and this omega is also constant. ये बाहर आ गया because it is rotating with constant angular velocity and sin omega t. This is what EMF का expression. So because मैंने बताया यहाँ पे एक वेव के जैसा ये फॉर्म हो रहा है, तो this BA omega is the peak value of that voltage. Because sin की maximum value कितनी हो सकती है? 1. साइन मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, 1 से ज्यादा तो जाएगा नहीं. तो साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1. सो बी ए ओमेगा इज द पीक वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज. इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट. सो बिकॉज जैसे हम वेव को एक्सप्रेस करते हैं ना, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, तो a इज द पीक वैल्यू ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. इन द सिमिलर वे में ये वेव के जैसा, यहाँ पे इस चैप्टर में एसी करंट में हमारा वोल्टेज और करंट दोनों वेव के जैसा हम स्टडी करेंगे. तो E is equal to B omega. B omega is the peak value of voltage, maximum value of that voltage. So in place of B omega, what you can write? E naught. Minimum value is 0 because when sin 0 is 0, and then when sin is 270, तो you'll get minus 1 here. तो minus 1 में ये क्या आ जाएगा? minus B omega. But minus का मतलब ये मत समझना कि वो मिनिमम हो गया. minus मतलब नेगेटिव फेज में, बट वैल्यू इज मैक्सिमम. जैसे वेव बोलता है ना प्लस माइनस, तो माइनस का मतलब ये नहीं लो वैल्यू हो गई. लो वैल्यू इज व्हाट? 0. जब वो एकदम मीन पे आएगा दैट टाइम इट्स वैल्यू इज 0. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो हियर द ईएमएफ व्हिच वी आर गेटिंग दैट इज वेरिएबल ईएमएफ बिकॉज़ वो साइन के जैसा वेरी कर रहा है. इट इज वेरिएबल लाइक अ साइन का ग्राफ. तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो हाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस ग्राफ? E इज इक्वल टू BA ओमेगा sin ओमेगा t. This BA omega is the peak value of that voltage. So in place of BA omega, what you can put? E is equal to E naught. E naught is the peak value of that voltage. E naught sin omega t. यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज का ग्राफ है वो कांस्टेंट है ही नहीं. It is variable, similar as it is variable with sin. In place of B omega is what? The peak value of that voltage. So in place of B omega, I can put E naught. E naught is what? The peak value. When you have to plot a graph ना, so this is what variable sin के जैसा ये vary कर रहा है. So maximum value कहाँ तक जाएगी? That is E naught. और minimum value minus E naught. हाँ ये in place of हाँ ये E naught is just B omega. In place of writing B omega, मैंने एक simple सा expression यहाँ पे put कर दिया. That is just E naught. इसका जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन सिंपल फॉर्म में. क्लियर? सो E naught इज द that is the peak value of voltage. Whenever you have to find the peak value of voltage, that is BA omega. B is the magnetic field, A is area, and omega is angular frequency. So here voltage is variable, similar to sine का ग्राफ. ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिवली इट इज चेंजिंग ना. और यहाँ पे आते हैं, जब मीन पे आते हैं तो उस टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाती है. तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है साइन के जैसा, प्लस माइनस. इट इज वेरिएबल सिमिलर टू साइन का ग्राफ. तो प्लस माइनस. सो E is equal to E naught sin omega t. That's why it is called alternating voltage. The voltage which is variable with respect to time. टाइम के साथ ये वोल्टेज चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है ही नहीं. जैसे ऐसा कांस्टेंट जाता है ना, दैट इज व्हाट DC, डायरेक्ट वोल्टेज. इसको बोलते हैं डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट करंट. यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट करंट जा रहा है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द टाइम सेम है, बट यहाँ पे क्या टाइम के अकॉर्डिंग इट इज वेरिएबल, प्लस माइनस मतलब दैट वैल्यू इज वेरिएबल. ये वैल्यू चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज. नाउ इफ यू आर कनेक्टिंग दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज विथ अ रेजिस्टर, अगर हम इसको रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं,
अब रजिस्टर में एसी डीसी का अलग नहीं होता, रजिस्टर दोनों के लिए एक ही होता है, चाहे वो एसी करंट हो या डीसी, रेजिस्टेंस आर ही रहता है, ठीक है। एसी का अलग से रेजिस्टेंस नहीं होता। तो हियर आई एम कनेक्टिंग विद दिस रजिस्टर विद एन एसी वोल्ट, एसी वोल्टेज को, लाइक डीसी बैटरी कैसा रिप्रेजेंट करता है इस वे में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, एसी इज रिप्रेजेंटेड लाइक अ वेव, ये हमारा एसी वोल्ट है, क्लियर। इफ यू आर कनेक्टिंग दिस एसी विद अ रजिस्टर, सो व्हाट करंट वी आर गोइंग टू गेट, बिकॉज वोल्टेज तो ऑलरेडी हमारे पास है, so current we can find current का एक्सप्रेशन, we can use Ohm's law, Ohm's law is applicable for all, either it is AC DC, जो भी laws हैं वो सभी सबके लिए applicable हैं। तो I is equal to V by R, that V is what, E divided by R, the EMF, net EMF, now E is what, E naught sin omega t, because it is AC voltage divided by R। now in place of E naught by R, E naught by R is what, the maximum value of current, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ई नॉट बाई आर, हम आई नॉट बाई आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, एक सिंपल वेव फॉर्म में, व्हाट आई एम राइटिंग, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो आई की वैल्यू, आई का एक्सप्रेशन व्हाट वी आर गेटिंग, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज आल्सो अ वेरिएबल करंट, क्लियर, बिकॉज ये भी साइन के जैसा चेंज होता है, जगह जैसे जैसे टाइम चेंज होगा एंगल चेंज होगा, तो साइन की वैल्यू वेरिएबल होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर साइन वेरी कर रहा है और करंट का जो हमारा फंक्शन है वो साइन का फंक्शन है, तो करंट भी वेरी करेगा। इट मींस इफ यू आर कनेक्टिंग एन एसी वोल्टेज, अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं एक रजिस्टर से, तो वोल्टेज अगर वेरिएबल है तो करंट भी वेरिएबल होगा। सो वी आर गोइंग टू गेट अ वेरिएबल करंट लाइक दिस, व्हाट, हाँ, प्लस आई नॉट एंड माइनस आई नॉट, so that similar to voltage current is also variable with respect to time। इसका मतलब अगर हम कॉइल को मूव कराते हैं, if you are rotating a coil, तो कॉइल रोटेट करके जो वोल्टेज डेवलप करता है ना, वो वोल्टेज भी रोटेटिंग जैसा ही होता है, मतलब वो वेरिएबल वोल्टेज होता है, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं रहता। so here both are variable, the voltage which we are getting that is variable। कैसे, हमने फ्लक्स लिया, फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, तो फ्लक्स में cos थीटा आता है, cos थीटा डिफरेंशिएट होके क्या हो गया, sin थीटा, तो we are getting a sin का एक्सप्रेशन, sin का फंक्शन इन वोल्टेज, इट मींस वोल्टेज वैसे ही वेरी कर रहा है जैसे sin का ग्राफ वेरी करता है। करंट, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द करंट, तो I is equal to what, E by R is what, E naught sin omega t by R, this E naught by R is the peak value of current, that is I naught sin omega t, so current is also variable with respect to time, so that's why it is called alternating current, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है ही नहीं, ये पीक वैल्यू पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर पीक वैल्यू पे जाता है, मतलब इट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे घर में जो यूज होता है वो एसी यूज होता है, मतलब जैसे हम बल्ब जलाते हैं घर में तो वो एसी रहता है, तो एक ही सेकंड में क्या करता है वो 50 टाइम, वो मैक्सिमम जाता है 50 टाइम मिनिमम, तो और वो 50 टाइम जीरो भी हो जाता है एक सेकंड में, 50 टाइम वो बल्ब बुझ जाता है, मतलब जो हमारा बल्ब जल रहा है ना वो 50 टाइम स्विच ऑफ हो जाता है, बट वो इतना फास्ट होता है कि हमको मालूम नहीं चलता, वी कैन नॉट सी, बिकॉज बट एक ही सेकंड में, इट इज वेरिएबल ना, इट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक ही सेकंड में वो 50 टाइम ऑफ ऑन ऑफ होता है, बट इतना फास्ट है तो हमको मालूम नहीं चलता। जैसे हमारा फैन होता है ना, फैन अगर रेस्ट में तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ ब्लेड्स, लेकिन फैन अगर एकदम हाई स्पीड से घूम रहा है देन यू कैन नॉट काउंट हाउ मेनी ब्लेड्स आर देयर इन दैट फैन, ठीक है। तो इसलिए अगर बहुत फास्ट वेरिएशन होता है तो हमको मालूम नहीं चलता, तो इसलिए यहाँ पे ये जो हमारे एसी वोल्टेज का वेरिएशन है इतना फास्ट होता है कि हमको ऐसा फीलिंग नहीं आती कि हमारा बल्ब एसी से जल रहा है या डीसी से। डीसी से भी जलेगा तो कांस्टेंट रहेगा, एसी से जलेगा तो वो स्विच ऑफ स्विच ऑन होगा, बट हमको मालूम नहीं चलता, क्लियर। Like a chapter wise test is there. So basically, no, what I did for DC Pandey ka textbook from DC Pandey bringing the theory and then solving the introductory exercise and that's it. So that's more than enough. हाँ, if you are just solving DC Pandey, that is more than enough, na. But you have to solve all the exercises of DC Pandey. No, so revision. हाँ, अच्छा, तो during when first time you have solved, you may have marked the questions now which are important questions. So during when again you are solving, just revise those questions. Okay, so only important questions. हाँ, only important questions. हाँ, Got it. ये
So in this case, I have connected I am just rotating this coil in a uniform magnetic field. Because of rotation of coil, the voltage which is induced is what, alternating voltage, और जो current आ रहा है that is also alternating current. अब हम इस AC के behavior को study करेंगे with resistor, inductor and capacitor. अगर हम AC वोल्ट को, जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था ना, वहाँ पे हम DC कनेक्ट करते थे with that capacitor. तो डीसी में क्या होता था, वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाने के बाद बंद हो जाता था, करंट स्टडी स्टेट में आके करंट को जीरो कर देता था. व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तो उस केस में क्या होता था कि कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज में आने के बाद करंट को जीरो कर देता, मतलब करंट को ब्लॉक कर देता था एट स्टडी स्टेट. बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक व्हाट विल हैपन इफ यू आर कनेक्टिंग एसी वोल्ट विद रेजिस्टर, एसी विद इंडक्टर एंड एसी विद कैपेसिटर. हम एसी का बिहेवियर स्टडी करेंगे विद रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. So one by one we are going to discuss. In AC current, if you are finding the average current for a complete loop, अगर हम average current निकालते हैं, ठीक है, because ये alternatively change हो रहा है ना, it is changing alternatively like this for a complete loop. ये हमारा plus I naught और ये क्या हो गया minus I naught. तो फॉर अ कंप्लीट लूप इट इज वेरिएबल, तो करंट की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. सो इफ यू आर फाइंडिंग एवरेज करंट फॉर दिस कंप्लीट लूप, अगर हम एवरेज करंट निकालते हैं, ठीक है, व्हाई वी हैव टू फाइंड द एवरेज, बिकॉज़ इट इज वेरिएबल. व्हेनेवर अ क्वांटिटी इज वेरिएबल, तो उसका हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है. तो अगर मैम ये कंप्लीट एसी सर्किट के लिए एवरेज निकालते हैं, सो आई एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. I can write here total current divide by total time. Now total current, यहाँ पे हमारा करंट तो वेरिएबल है, तो हाउ वी कैन गेट द टोटल करंट. सो हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल करंट लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे. जस्ट फाइंड द करंट एट दिस पॉइंट. जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आई निकाला, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट इट फॉर द कंप्लीट साइकिल. सो वी आर गोइंग टू गेट द टोटल करंट. Why I'm going to use integration, because it is variable ना, कांस्टेंट होता तो हमको मालूम होता टोटल करंट कितना है, बट यहाँ पे तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमको इंटीग्रेशन, व्हेनेवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज वेरिएबल, हमको किससे हैंडल करना होता है, इंटीग्रेशन यूज करके. तो टू फाइंड द टोटल करंट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt फॉर अ कंप्लीट साइकिल आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम सपोज कर पूरे लूप के लिए जो टोटल टाइम है दैट इज t. टू कंप्लीट वन साइकिल, व्हेन वन साइकिल ऑफ दिस करंट इज completed, so the total time is what, time period, one time period. So how to get the total current, just integration of I dt divide by total time. Now integration of I dt, हाँ बोलो, हो गया this integration, this is the दिस करंट का ग्राफ में, बिकॉज करंट इज वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. करंट हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है. हाँ, यहाँ पे माइनस आई नॉट होगा. सो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन आई हैव टू फाइंड द टोटल करंट, दैट इज द टोटल करंट फॉर वन साइकिल डिवाइड बाय टोटल टाइम. नाउ फाइंड द टोटल करंट फॉर वन साइकिल. सो आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल करंट. आई का एक्सप्रेशन हमारा क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी into dt डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम इज व्हाट, t. ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt. सपोज वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट स्मॉल टाइम आल्सो. एक हमने इंस्टेंटेनियस करंट लिया, उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया फॉर अ कंप्लीट लूप. तो वी आर गोइंग टू गेट द टोटल करंट. टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम इज व्हाट, द एवरेज करंट. यही हमारा मेथड होता है एवरेज निकालने का. जैसे हम अपने मार्क्स का एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो पहले पूरा ऐड करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. सो सिमिलर वे में by integrating we can get the total current. The total current divided by total time. मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक कंप्लीट लूप के लिए. वी आर गोइंग टू फाइंड द एवरेज करंट फॉर वन लूप. एक लूप के लिए हम एवरेज करंट निकालते हैं. क्लियर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एवरेज करंट फॉर वन लूप या वन साइकिल. Here we are finding the average current for one cycle. We can find for half cycle also. अगर हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालना होगा तो हम केवल 0 से t/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, हाफ ऑफ द टाइम तक इंटीग्रेट. बट हियर आई एम फाइंडिंग द एवरेज करंट फॉर वन साइकिल. पहले मैं एक साइकिल का बताता हूँ, फिर मैं हाफ साइकिल का भी निकाल सकते हैं.
तो फॉर वन साइकिल लिमिट कहां जाएगा, 0 टू टोटल टाइम पीरियड, 0 टू t आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट बिकॉज आई एम फाइंडिंग द एवरेज करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज करंट निकाल रहे हैं. सो दैट इज व्हाट द टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल करंट, करंट का एक्सप्रेशन क्या है, I नॉट sin ओमेगा t dt डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos ओमेगा t, माइनस cos ओमेगा t डिवाइड बाय ओमेगा, बिकॉज व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग यू हैव टू डिवाइड विद द कोएफिशिएंट, लिमिट 0 टू t. हाँ, देन आई एम गोइंग टू पुट द लिमिट, t और कैपिटल T और 0 दोनों पुट करेंगे ना, बिकॉज cos 0 भी 1 आता है. तो चलो अब इसमें पुट कर दो. तो आई एवरेज मैं बाहर निकाल रहा हूं, ये ओमेगा टी को मैं वो साइड में लिख दे रहा हूं, 1 अपॉन ओमेगा टी मैंने साइड में लिख दिया. व्हाट वी आर गोइंग टू गेट माइनस cos ओमेगा टी, माइनस cos ओमेगा टी, और माइनस ऑफ माइनस cos 0, तो दैट इज प्लस cos 0. क्लियर. सो cos 0 इज 1. नाउ ओमेगा का एक्सप्रेशन, ओमेगा हमारा क्या होता है, 2 पाई बाई टी. That is what the expression of omega. Here if you are putting 2 pi by t, so t will get cancelled. So t will get cancelled. We are going to get 1 upon omega t. Here what we are going to get, minus cos 2 pi, minus cos 2 pi plus cos 0. And cos 2 pi and cos 0. cos 2 pi की वैल्यू भी 1 होती है और cos 0 भी 1 होता है, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे. So what value we are going to get? नो नो, हाँ एवरेज फॉर वन साइकिल एवरेज करंट इज 0 ना. जैसे देखो जो लाइट रेज आती है ना, लाइट रेज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें भी क्या होता है, अल्टरनेटिवली चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमारे स्किन को हिट करता है तो क्या हमको शॉक लगता है, क्या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है क्या लाइट रेज से, बिकॉज फॉर अ कंप्लीट साइकिल इट्स एवरेज वैल्यू इज 0. यहाँ पे जो हमारा टर्म आ रहा है, दैट एवरेज करंट फॉर वन साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल वी आर गेटिंग 0 एवरेज करंट. एक साइकिल के लिए जो एवरेज करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. हाँ, इफ यू हैव टू फाइंड फॉर हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए क्या करेंगे, वो लिमिट चेंज हो जाएगा फॉर हाफ साइकिल. इफ यू आर फाइंडिंग हाफ साइकिल जस्ट चेंज द लिमिट 0 टू t/2. ठीक है, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, t/2. लिमिट क्या होगा, 0 टू t/2. रिमेनिंग थिंग्स आर सेम. तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, बस का लिमिट चेंज हो जाएगा फॉर हाफ साइकिल. तो यहां पे हमारा आ जाएगा ओमेगा, नीचे आएगा ये t/2. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 2 बाई ओमेगा t. नाउ और ये i नॉट भी बाहर आएगा, cos, यहां पे i नॉट बाहर माइनस cos ओमेगा t. अब देखो क्या हो जाएगा, पुट t/2, तो माइनस cos ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई बाई टी इंटू t/2, अब प्लस cos, दैट टर्म इज 0. तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा टर्म, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट पाई बाई, सॉरी पाई वी आर गोइंग टू गेट, t is cancelled, 2 is cancelled, so we are going to get minus cos pi. हाँ, so here we are getting 2 I0 divided by omega t minus cos pi plus cos 0, and cos pi is -1, तो माइनस माइनस +1, तो +1 2 हो जाएगा. So I average for half cycle, this is what 2I0 divided by omega. In place of omega what you can put 2 pi by t into 2. So ये 2 कैंसिल होगा, t कैंसिल हो जाएगा, तो we are going to get 2I0 by pi. This is what the average current for half cycle. ठीक है, यहाँ पे I0 cos ओमेगा t वेट पर ओमेगा बाहर आ गया, t/2 2 पर गया, तो 2I0 by ओमेगा t. लिमिट मैंने पुट कर दिया, पहले अपर लिमिट इज 2 पाई बाई t इंटू अपर लिमिट इज व्हाट t/2 माइनस ऑफ माइनस cos 0, तो दैट इज प्लस cos 0, तो ये 1 आ गया, ये हमारा cos pi वो भी 1, तो माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, तो 2, तो 2 is cancelled, तो we are going to get 2I0 by pi. That is what the average current for half cycle.
Actually this derivation is important because sometime if they are changing the current का function ना, ये AC current है तो that directly you can find, but if they are just changing the current का function तो you should know how to find that average, because वो जब एग्जाम में पूछेंगे तो ये डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, because they will change the function. तो even if they are changing the function, I का function बदल जाएगा but method तो same रहेगा ना, I dt divided by dt. then this is very important. हाँ, इसका डेरिवेशन अपने को याद रखना होगा. Whenever you have to find the average current, just find the total current divide by total time. This is the average current. Next we are going to find root mean square current. If you have to find root mean square current, हाँ हाँ, sometimes the questions are asked based on this root mean square current and average current. They will give you a graph देंगे, बोलेंगे find the root mean square current for this graph या average current for this graph. ये साइन वाला तो हम याद कर सकते हैं, बट वहां पे रैंडम ग्राफ देंगे तो हमको याद नहीं रहता, तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट दैट. नेक्स्ट रूट मीन स्क्वायर करंट. सो रूट मीन स्क्वायर करंट इज व्हाट IRMS. तो रूट मीन स्क्वायर मतलब पहला तो अपने को रूट लेना है किसका, आई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt डिवाइड बाय टोटल टाइम. इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर. तो पहले हमको रूट लेना है किसका, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर के मीन का. तो रूट ऑफ आई स्क्वायर dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt. रूट केवल ऊपर है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dt. ठीक है. सो इट इज व्हाट IRMS इज इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर. अभी जो मैं एवरेज निकाल रहा हूं वो स्क्वायर का निकाल रहा हूं, आई स्क्वायर dt डिवाइड बाई टोटल टाइम. अभी आई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ इंटीग्रेशन आई स्क्वायर क्या देगा, आई साइन ओमेगा टी. तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt लिमिट 0 टू t फॉर अ कंप्लीट साइकिल आई एम गोइंग टू फाइंड. तो मैंने लिमिट पुट किया है 0 टू t डिवाइड बाय हमारा टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा. द टोटल टाइम फॉर वन साइकिल आई एम गोइंग टू फाइंड द रूट मीन स्क्वायर करंट. सो टोटल टाइम इज व्हाट t. अब इसको सिंपलीफाई करो, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर dt, करंट को मैंने स्क्वायर कर दिया, ये आई नॉट स्क्वायर है, आई नॉट साइन ओमेगा टी को मैंने स्क्वायर किया, तो आई नॉट स्क्वायर तो इंटीग्रेट होगा ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी. हाउ टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो साइन स्क्वायर थीटा को हमको लिखना होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, देन ओनली यू कैन इंटीग्रेट. सो IRMS इज इक्वल टू ये रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर में बाहर कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. सो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी होल डिवाइड बाय 2 dt होल डिवाइड बाय टोटल टाइम. बिकॉज साइन स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता, ऐसा मत कर देना साइन का पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1. ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है स्क्वायर, तो हमको यूनिट पावर में लेना था. तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2. अब देख लो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. सो IRMS इज इक्वल टू ये आई नॉट बाहर आ जाएगा बिकॉज ये स्क्वायर है ना, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा. रूट के अंदर क्या बचेगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ इसको भी बाहर 2, मतलब ये आई नॉट, ये जो 2 था उसको भी मैं बाहर ले आ रहा, रूट 2, ये जो 2 था ना इसको भी मैंने बाहर ले आया. सो आई नॉट स्क्वायर, तो आई नॉट आ गया, ये 2 रूट में बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट बाई रूट 2. अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1. इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारा, इसको दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज जस्ट t माइनस साइन ओमेगा cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t. तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, दैट इज 2 ओमेगा लिमिट 0 टू t फॉर वन कंप्लीट साइकिल वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट होल डिवाइड बाय t. अब इसी को मैं सिंपलीफाई कर दूंगा, हमारा रूट में स्क्वायर आ जाएगा. तो चलो इसको मैं सिंपलीफाई करता हूं. Once you can get root mean square for complete cycle, you can get it for half cycle also. For half cycle only limit is changed. For 1/4 cycle limit is changed. Only limit you have to change. तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है IRMS.
So IRMS till here we have simplified. IRMS is what? I naught by root 2. यहाँ पे इंटीग्रेट मैंने कर दिया तो t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 is t and cos 2 omega t का sin 2 omega t डिवाइड बाय 2 omega because it is divided by coefficient. तो t माइनस sin 2 omega t डिवाइड बाय 2 omega 0 to t होल डिवाइड बाय t. अब इसको सिंपलीफाई कर लो तो इट इज व्हाट वी आर गेटिंग I naught by root 2 स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट पुट करो तो t के जगह हमारा t माइनस sin 2 omega t by 2 omega और दूसरा टर्म तो जीरो है तो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे तो माइनस जीरो होल डिवाइड बाई टी. सो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2. हियर इफ आई पुटिंग द लिमिट तो हमारा टी माइनस साइन 2 मेगा ये हमारा 2 मेगा साइन 2 मेगा तो व्हाट वी कैन राइट साइन 2 इनटू ओमेगा की जगह व्हाट यू कैन पुट 2 पाई बाई टी इनटू टी. अब यहाँ पे देखो इस 2 मेगा को कैंसिल मत कर देना बिकॉज ये एंगल नहीं है, ये नीचे वाला एंगल नहीं है तो ऐसा नहीं कि इसको काट दिया साइन टी लिख दिया. ठीक है, वो एंगल का पार्ट है, ये हमारा डिनोमिनेटर है होल डिवाइड बाय टी. सिंपलीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा टी इज कैंसिल वी आर गोइंग टू गेट sin 4 पाई हियर एंड sin 4 पाई इज 0. sin 4 पाई इज 0. So I naught by root 2 what we are going to get t minus 0 divide by t. तो ये कट गया तो just this result we are going to get. IRMS is what? I naught by root 2. Clear? So this is what the root mean square current. Or root mean square current in the similar way you can find root mean average voltage and root mean square voltage. So average voltage भी जीरो आएगा. Clear? जैसे हमारा अगर हम इफ यू आर फाइंडिंग द एवरेज वोल्टेज ना तो V एवरेज जीरो आता है फॉर अ कंप्लीट साइकिल और V RMS आता है सिमिलर वे में इज V नॉट बाई रूट 2 सिमिलर टू करंट. फॉर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज करंट इज जीरो एंड RMS I root mean square current is what? I naught by root 2. In the similar way में for a complete cycle average voltage is zero but VRMS root mean square voltage for a complete cycle is what? V naught by root 2. हाँ, so if you are putting half cycle ना तो केवल लिमिट चेंज हो जाएगा. यहाँ पे t by 2 होगा और इधर भी हमारा t by 2 से 0 मतलब 0 to t by 2. इसमें if you are finding half cycle ना just change the limit. जो हमने इंटीग्रेट किया है 0 to t तक उसको इंटीग्रेट करो 0 to t by 2. अच्छा that तो you have to calculate. Okay, so this is what we have calculated IRMS and ERMS. Sorry, IRMS and ERMS for a complete cycle. तो याद रखना if you have to find IRMS, sorry I average. So I average is what? Integration of I dt whole divided by total time. ये हमारा 0 to t तक जा रहा है. And I RMS whole root of integration of I square dt divided by integration of dt. लिमिट कुछ भी